Hello everyone, welcome back to Topper Brains. Today we will discuss the question answers of Journey to the Sundarbans. If you have not seen the video, the explanation video, you will get the link in description box only. And you can also visit the playlist where you can get all the chapters and question answers and grammar part of all the chapters of Longman New Images Next in the playlist. So we will start. First question is, what are the Sundarbans? Where are they located? Sundarban is the largest mangrove forest in the world and home to Bengal tigers. Sundarbans literally means beautiful forest. They are located in West Bengal, a state of India in the east. So, if you are visiting the channel for the first time, please do subscribe the channel and like the video, and please share it to your friends so that everyone can get the benefit of this video. Second question, who wrote the book The Hungry Tide? What does the book say about the Sundarbans? Amitabh Ghosh wrote the book The Hungry Tide. Amitabh Ghosh in his book says that there is no prettiness here to invite the stranger in. About Sundarbans, it is home to man-eating tigers and hungry tides. It is already seeing the impact of climate change. Means, who wrote that हंग्री टाइड बुक किसने लिखा था और व्हाट डज द बुक से अबाउट सुंदरबंस, और ये बुक सुंदरबन के बारे में क्या कहता था? तो अमिताभ घोष रोड द बुक. अमिताभ घोष ने इस हंग्री टाइड को लिखा था और अमिताभ घोष ने इस बुक में कहा था कि देयर इज़ नो प्रिटीनेस हेयर, यहाँ पे कोई सुंदरता नहीं है अब कि स्ट्रेंजर्स को, लोगों को यहाँ पे बुलाया जाए. सुंदरबंस के लिए कोई अभी सुंदरता बचा नहीं है. इट इज़ होम टू मैन ईटिंग टाइगर्स, ये तो घर है मनुष्य को खा जाने वाले टाइगर्स का. एंड हंग्री टाइड्स, और लहर जो बहुत जानलेवा होता है. इट इज़ ऑलरेडी सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और सुंदरबन में बहुत क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट मतलब असर होने लगा है. तो बहुत बुरा असर होने लगा. क्लाइमेट ऐसा मतलब चेंज हुआ वहाँ पे समय रहते रहते कि वहाँ वो सुंदरबन जो है वो अपना खूबसूरती खोते जा रहा है डे बाय डे. व्हाट डज द पॉडकास्ट से अबाउट द बंगाल टाइगर? पॉडकास्ट जो ये है ये बंगाल टाइगर के बारे में क्या कहता है? द पॉडकास्ट से अबाउट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इन्वायरमेंट एंड द टाइगर पॉपुलेशन. जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इन्वायरमेंट में, वो टाइगर के पॉपुलेशन को बहुत असर कर रहा है. वाइल क्रूजिंग इनसाइड द क्रिक्स ऑफ सुंदरबंस वी कैन सी सुंदरबन टाइगर रिजर्व. इफ वी आर लकी वी कैन ऑल्सो सी टाइगर्स. That Sundarbans are the home to a large population of Bengal tigers. The tigers are happy in Sundarbans water and they swim for miles from island to island, but they are elusive. Elusive means difficult to find, मतलब उनको ढूंढ पाना आसान नहीं होता है. But they are elusive. कौन elusive है? बंगाल टाइगर्स. बंगाल टाइगर्स को इजीली देखा नहीं जा सकता वहाँ पे. They, the very unfortunate thing is that people here have been eaten by tigers. तो यहाँ पे सबसे दुर्भाग्य की बात यही है कि यहाँ पे लोग जो है वो टाइगर्स के द्वारा खा लिए जाते हैं. मतलब टाइगर्स जो है वो लोगों को खा जाता है. What other creatures are found in the Sundarbans? यहाँ पे और क्या क्या क्रिएचर्स पाए जाते हैं? Describe them in brief. Sundarbans are the home to Bengal tigers. Apart from tigers, there are many creatures found in the Sundarbans like monitor lizard, which is considered as lucky if seen in the beginning of the trip. यहाँ पे मॉनिटर लिजार्ड भी पाया जाता है बंगाल टाइगर के अलावा. तो मॉनिटर लिजार्ड अगर आपको जर्नी के स्टार्टिंग में दिख जाता है, ट्रिप के स्टार्टिंग में दिख जाता है, तो वो लकी माना जाता है एज अ लोकल बिलीफ. वहाँ पे आम जनता जो है, लोग जो है वहाँ पे ऐसा मानते हैं, ऐसा मान्यता है कि आपको पहले मॉनिटर लिजार्ड अगर दिख गया ट्रिप के स्टार्टिंग में तो आपका लक बहुत अच्छा है. उसके बाद क्या है वहाँ पे? कोबराज एंड क्रोकोडाइल्स इन द फॉरेस्ट and water. Iravadi dolphin, which is beautiful and also a sign of good luck. यहाँ पे इरावदी डॉल्फिन है, वो भी गुड लक का एक निशानी है. There are crabs in the mud banks and fireflies at night.
यहाँ पे केकड़े भी होते हैं, जो केकड़े जो बहुत साल पहले यहाँ पे हुआ करता था, तो वहाँ का जो मड बैंक था, कीचड़ का जो किनारा था, वो पूरा रेड हो जाता था, भर जाता था क्रैब से। और वहाँ पे फायर फ्लाइज दिखता है नाइट में, जो बहुत जुगनू जिसको बोलते हैं, ग्लो वॉर्म जो हम लोग पढ़े हैं, उसको भी फायर फ्लाइज बोलते हैं, जो रात को टिमटिमाता है। नेक्स्ट A3 में हम लोग देखेंगे, एक यहाँ पे लाइन दिया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है। तो A3 का 1 में है, क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू ड्रामेटिकली रीशेप सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो इसमें हु इज़ द स्पीकर हेयर, यहाँ पे स्पीकर कौन है? ऑडी कॉर्निस इज़ द स्पीकर हेयर। बी, what place are they visiting? When these words are said, what place are they visiting? कौन सा प्लेस वो लोग विजिट करने जा रहे हैं? तो वो लोग सुंदरबंस विजिट करने जा रहे हैं। बी का आंसर सुंदरबंस। इसको आप कंप्लीट सेंटेंस में लिख सकते हैं। सी में है, हाउ इज़ क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग द शेप्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन। क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है अर्थ के कुछ कुछ पार्ट्स को, एक्सप्लेन कीजिए। सुंदरबंस आर लिटरली मीन्स ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबंस का लिटरल मीनिंग ही होता है ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। सुंदर बन, सुंदर मतलब खूबसूरत, सुंदर, और वन मतलब फॉरेस्ट, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये बहुत ही खूबसूरत मैंग्रोव फॉरेस्ट, दलदली फॉरेस्ट है। सुंदरबंस आर लूजिंग इट्स ब्यूटी डे बाई डे। सुंदरबन जो है अपना खूबसूरती दिन पर दिन खोते जा रहा है। क्यों खोते जा रहा है? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट डिसअपियर अंडर वाटर। द विलेजेस आर फ्लडेड एवरी टाइम द टाइड्स गेट्स स्पेशली हाई। दिस इज मेकिंग लाइफ इवन हार्डर हेयर। Tides are taking away chunks of land into the water. Years ago, when you went to the Sundarbans, the mud banks would turn red with crabs. That never happens anymore, and you don't see trees lighting up at night with fireflies. All this is because of climate change. Climate change होने की वजह से अब सब कुछ बदल चुका है सुंदरबन में। सुंदरबन जो बहुत खूबसूरत हुआ करता था एक समय में, जहाँ पे बहुत खूबसूरती था, वहाँ पे रेड क्रैब्स जो है वो मड 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 जो बैंक है उसके किनारे में वो लोग भर जाते थे। लेकिन आजकल वो क्रैब्स, रेड क्रैब्स बहुत कम हो गया। फायर फ्लाई जो रात को पेड़ में भर के टिमटिमाते थे बहुत ज़्यादा, अब वो बहुत कम हो चुका, अब वो दिखता नहीं है। टू गेट द सुंदरबंस यू लीव फ्रॉम द बिग सिटी। Which big city is being talked about here? Kolkata is the big city. How long does it take to reach the Sundarbans from this big city? It takes 4 hours, 2 by car and 2 by boat. What modes of transport does one use to get there? Transport can be used are car and boat to get there. और यहाँ से स्टार्ट होता है थिंक एंड आंसर, जिसका क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्टली मैंने आंसर लिखा। क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए प्लीज़, और मैं इसको रीड करता हूँ। थिंक एंड आंसर का पहला, अमिताभ घोष राइट्स, देर इज़ नो प्रेटिनेस हेयर टू इन्वाइट द स्ट्रेंजर इन बिकॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लूजिंग इट्स ब्यूटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। वी गेट इंस्टेंसेस फ्रॉम द पॉडकास्ट फॉर दिस, लाइक फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग अंडर वाटर, द विलेजेस आर फ्लडेड एवरी टाइम, द टाइड्स गेट्स स्पेशली हाई, दिस इज मेकिंग लाइफ इवन हार्डर हेयर, tides are taking away chunks of land into water. Now we don't see the red mud banks full of crabs, and we don't see fireflies lighting up the trees at night. पिछला क्वेश्चन का जो आंसर था वो भी सेम था, ठीक है, इसी के जैसा था। तो आप एक को अगर आप लर्न करेंगे अच्छे से तो बहुत सारे क्वेश्चंस में उसका यूज़ हो जाएगा। इसीलिए आप समझ के रखना है आपको, और अपना लैंग्वेज में, अपना वर्ड्स में भी आप लिखने का ट्राई कीजिए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़, ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं और एक कमेंट करते हैं तो। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए।
सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर ऑन 1 अप्रैल 1973 टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1 अप्रैल 1973 को, ताकि हम बाघों की रक्षा कर सकें, बाघों को बचा सकें। WWF वर्क्स विद गवर्नमेंट्स across the 13 tiger range countries with wild tiger population to build and maintain momentum around the conservation of tigers। WWF जो है वो 13 कंट्रीज़ जहाँ पे टाइगर हैं, टाइगर का रेंज है, उन लोगों के साथ मिल करके मोमेंटम बनाता है और टाइगर को कंजर्व करने का काम करता है। कौन ना? WWF। इंडिया हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स including bringing out guidelines for tiger safaris to reduce the pressure of ecotourism, protect habitats of the big cats, that is tiger, and conserve its population। WWF India, in partnership with the National Tiger Conservation Authority and state forest departments, conducts camera trapping exercises to monitor tigers। ये लोग कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइजेज भी करते हैं, जिसमें कैमरा से ट्रैप करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ टाइगर है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो लोग अच्छे से रह भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इंडिया का जो WWF है और इंडिया का जो गवर्नमेंट है, ये लोग सब आपस में मिल करके कोऑर्डिनेशन बना करके पार्टनरशिप में मिल करके टाइगर्स को बचाने का काम करते हैं और टाइगर्स को बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद वैल्यूएट आंसर है। वैल्यूएट आंसर डायरेक्टली मैंने लिखा है, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, आप क्वेश्चन ज़रूर बुक से देख लीजिए। यस, क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू ड्रामेटिकली रीशेप सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड सुंदरबन इज़ वन ऑफ दिस प्लेसेस। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में सारे जगह जो है, अर्थ में सारे जगह जो है वो अपना रूप बदल रहा है और उसी में से सुंदरबन भी एक है। सुंदरबन का भी रूप बदलने लगा अब, पहले जितना ये सुंदर हुआ करता था अब वैसा नहीं रहा। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द होल वाइल्ड लाइफ इज सफरिंग एंड दे आर लूजिंग देयर हैबिटेट्स। नॉट ओनली द टाइगर्स, अदर क्रिएचर्स आर ऑल्सो कमिंग एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब होता है खोने के कगार पे, लुप्त होने के कगार पे। मतलब जैसे डायनासोर लुप्त हो गया, लेकिन टाइगर जो है अभी लुप्त होने के कगार पे आ गया है, मतलब बहुत कम बचा है, अब लुप्त हो जाएगा। लुप्त हो जाना मतलब ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा वाइल्ड लाइफ सफ़र कर रहा है। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो है अपना घर खो चुके हैं और टाइगर्स जो है, सिर्फ टाइगर ही नहीं, बहुत अदर भी क्रिएचर्स हैं जो लोग एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, गायब होने के कगार पे आ गए हैं। तो हम लोगों को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको बचाव किया जाए। द क्लाइमेट चेंज इज ड्यू टू ह्यूमन्स मॉडर्नाइजेशन डिपेंडेंसीज। ह्यूमन मॉडर्नाइजेशन डिपेंडेंसीज ऑन टेक्नोलॉजीज, ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द वाइल्ड लाइफ, destroying forest areas for getting land and furniture woods। तो ये सब क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन का जो मॉडर्नाइजेशन वाला थिंकिंग आ गया है, ह्यूमन मॉडर्न होने के लिए सब कुछ कर रहा है, पेड़ का कटाई कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, फर्नीचर बना रहा है अपना, उसको लकड़ी चाहिए, उसको ज़मीन चाहिए, उसको बिल्डिंग बनाना है, फॉरेस्ट क्लियर कर रहा है। तो कितने जानवर का, कितने वाइल्ड एनिमल्स का, बर्ड्स का कितना घर नष्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है फॉरेस्ट। फिर लोगों को लैंड चाहिए हर काम के लिए। तो ऐसे करके ये सब करने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल ह्यूमन इंटरफेरेंस टू वाइल्ड लाइफ। और गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे लोगों का इंटरफेरेंस वाइल्ड लाइफ में। लोग वाइल्ड लाइफ में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं, एनिमल्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनको अपने लाइफ में रहने देना चाहिए। वी शुड ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, हमारे अर्थ के लिए। हमारा अर्थ तभी बचेगा जब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट होगा। तो वीडियो को आप अगर देखे हैं, अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। Now we will see the questions, MCQ questions in A1। What does सुंदरबन literally mean? सुंदरबन literally क्या मीनिंग होता है उसका? ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। D।
ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट. द टाइड्स रीच इनलैंड एज फार एज 200 miles. बी नंबर 200 miles. अमिताभ घोष इज अ नोवेलिस्ट. ए. वॉट वॉज रातुल शाहज रोल इन द जर्नी टू सुंदरबंस. रातुल शाह क्या काम कर रहे थे उसमें? गाइड का काम कर रहे थे, गाइड. देन यहाँ पे हम लोग को बताया गया है वर्ड वर्ल्ड में एफिक्सेस. एफिक्स क्या होता है? एफिक्स दो तरह का होता है. एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स. एन एफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द बिगिनिंग और एंड ऑफ द वर्ड. एक लेटर होता है या ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो कोई मेन वर्ड के आगे लगता है या पीछे लगता है. ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. तो एफिक्स में दो होता है, एक प्रीफिक्स जो पहले लगता है और जो बाद में लगता है वो है सफिक्स. जैसे यहाँ पे हैप्पी है, हैप्पी वर्ड दिया हुआ, हैप्पी के पहले अन लगा दिया गया, तो पहले अगर लगाया जा रहा तो वो प्रीफिक्स है. ठीक है, अनहैप्पी हो गया, हैप्पी के पहले अन लगाया तो नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में हैप्पी के पहले अन लगाया, यू एन अन लगाया तो अनहैप्पी हो गया. तो पहले लगाया तो इसलिए प्रीफिक्स. प्री का मतलब ही होता है पहले, फिक्स करना मतलब फिक्स. ठीक है, फिर कॉशन के पहले प्री को फिक्स कर दिया, प्री फिक्स हो गया. ठीक है, प्री कॉशन हो गया, बन गया ये. देन नंबर 2 में है, इसमें पीछे लगाना है, क्विक के पीछे. उसमें हैप्पी के पहले लगा था, इसमें क्विक के पीछे लगेगा. तो जब पीछे कुछ लगता है, ऐड होता है, फिक्स होता है, तो वो सफिक्स कहलाता है. क्विक के बाद एल आई लग गया, ली, क्विकली बन गया. एम्यूज़ के बाद मेंट लग गया था, एम्यूजमेंट बन गया. ठीक है, यहाँ पे वही फिल इन द ब्लैंक्स करना है. यू डोंट बिलीव, नंबर 1 में यू डोंट बिलीव इन दैट सुपरस्टिशियस नॉनसेंस, डू यू. नॉनसेंस हो जाएगा, सेंस के पहले नॉन लगा दो. इट वॉज सेकेंड नंबर, इट वॉज थॉटफुल, थॉट के बाद फुल लगा दो. यहाँ पे पहला वाला में प्रीफिक्स हुआ और दूसरा वाला में सेकंड नंबर में थॉट के बाद लग रहा, पीछे लग रहा, मतलब सफिक्स लग रहा. तो थॉटफुल, इट वाज थॉटफुल ऑफ हिम. नंबर 3 में मैनी डेथ्स फ्रॉम हार्ट डिजीज आर एक्चुअली अनअवॉइडेबल भी होगा और अवॉइडेबल भी होगा, दोनों ही होगा. अवॉइडेबल अगर बोलेंगे, अवॉइडेबल बोलेंगे मतलब अवॉइड किया जा सकता है, तो अवॉइड के पीछे एबल लगा के नंबर 3 में. तो बहुत सारा डेथ जो है हार्ट डिजीज़ से जो होता है वो एक्चुअली अवॉइडेबल है. ठीक है, ये अवॉइडेबल ही इसमें करना है, यही ठीक रहेगा. मोस्ट अप्रोप्रिएट हो रहा है अवॉइडेबल. नंबर 4 में आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर एंड आई वॉज गेटिंग इम्पेशेंट. पेशेंट के पहले आई एम इम लगा दो, इम्पेशेंट. मोहन सेड इन एंगर द सिस्टम इज़ करप्ट एंड अनजस्ट, जस्ट के पहले अन लगा दो. आई वॉज सरप्राइज्ड बाई अमित्स प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन. देन क्लॉजेज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का है. A noun clause is a clause that functions like a noun in a sentence and often acts as the subject or the object of a verb. Noun clause जो होता है वो ऐसा clause होता है जो noun के तरह तो काम करता ही है एक सेंटेंस में, और साथ में प्रायः ऑफन जो है वो प्रायः जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है verb का. जैसे एग्जांपल में दिया गया, I asked our guide Ratul whether there are any superstitions अराउंड सीइंग अ टाइगर. तो आई आस्क्ड अवर गाइड रातुल, रातुल जो एक नाउन है ना, उसके बारे में बता रहा. वेदर, उससे क्या पूछा गया, वेदर देयर आर एनी सुपरस्टिशंस अराउंड सीइंग अ टाइगर, टाइगर देखने में कोई सुपरस्टिशन है क्या, अंधविश्वास है क्या. ठीक है, तो रातुल का वो पूछ रहा है, रातुल के बारे में रातुल को पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पे सुपरस्टिशियस है क्या टाइगर को देखना. इन दिस सेंटेंस हाईलाइटेड क्लॉज जो है, इन दिस सेंटेंस हाईलाइटेड क्लॉज एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट. ये जो वेदर से लेकर के टाइगर तक है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह काम कर रहा है. ठीक है, हम लोग पूछे अपने गाइड को हम लोग पूछे. आस्क करना मतलब एक वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है ये. उसके बाद एन एडजेक्टिव क्लॉज,
एंड एडजेक्टिव क्लॉज इज क्लॉज दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। ये एडजेक्टिव क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, मतलब कोई भी चीज़ का, कोई भी नाउन का विशेषता बताता है, उसका क्वालिटी बताता है, गुण बताता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन, लाइक ये इंट्रोड्यूस किया जाता है हु, विच, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, विच, दैट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आवर गाइड टुडे इज रातुल साहा हु रन्स द सुंदरबंस प्रोग्राम फॉर द वर्ल्ड लाइफ फंड। इन दिस सेंटेंस highlighted clause describes the noun रातुल साहा and hence it acts as an adjective। तो यहाँ पे रातुल साहा जो है एक नाउन है, रातुल साहा के बारे में उसका फीचर, उसका क्वालिटी के बारे में बताया गया कि हु रन्स द सुंदरबन, जो वह रातुल साहा जो सुंदरबन में एक प्रोग्राम चलाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए। इसके बाद का है, नाउ रीड दिस सेंटेंस। द नॉवेलिस्ट अमिताभ घोष टोल्ड मी द लैंडस्केप हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस ही रोट अबाउट द सुंदरबंस more than a decade ago. Years ago, when you went to the Sundarbans, the mud banks would turn red with crabs. The clause highlighted in these sentences are adverb clause। यहाँ पे जो सेंटेंस दोनों पॉइंट में सेंटेंस जो दिया हुआ, इसमें जो सेंटेंस हाईलाइटेड है ये एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब सिर्फ मतलब वर्ब का भी विशेषण बता रहा है, मतलब काम तो कर ही रहा है, उसका भी प्रॉपर्टी और उसका भी क्वालिटी बता रहा है। तो क्रिया का क्वालिटी बता रहा है, क्रिया का, तो क्रिया विशेषण हो जाए, क्रिया का विशेषता बता रहा है, वर्ब का विशेषता बता रहा है। एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब क्लॉज क्या है? एडवर्ब क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन, जो कि फंक्शन करता है एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, और एडवर्ब की तरह वो फंक्शन करता है। इट टेल्स व्हेन, वेयर, हाउ और वाई एन एक्शन ऑकर्स। ये बताता है व्हेन, वेयर, हाउ और वाई, एक्शन कैसे, कहाँ, कब हुआ, ये बताता है। सम कंजंक्शंस दैट हेल्प अस आइडेंटिफाई एन एडवर्ब क्लॉज आर व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, अनटिल, ये सब। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है ये पूरा चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।